میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس۔ آج ہمارے ساتھ ہے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ہارٹی کلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ صاحب۔ حالانکہ ہارٹی کلچر سے کہیں نہ کہیں ہر افراد ہر گھر جڑا ہوا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور اب ہارٹی کلچر کی جو ایکٹیویٹیز وہ بھی آنے جا رہی ہے۔ ہارٹی کلچر کو مانا جاتا ہے کہ کشمیر اکانومی کی ایک بیک بون ہے، تو کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ اس سیکٹر کو اور مضبوط بنایا جائے؟ تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ڈائریکٹر جنرل ہارٹی کلچر اعجاز احمد بٹ صاحب۔ اعجاز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، پہلے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ 2021 تو ختم ہوا، اب 2022 میں حالانکہ مارچ سے ہارٹی کلچر کی ساری جو ایکٹیویٹیز وہ شروع ہو جاتی ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی پریپریشن ہے، کس طرح کی تیاری ہے تاکہ اس سیکٹر کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے، اس سیکٹر کو اور زیادہ آگے لے جائے۔ سجاد صاحب، ناظرین کو اور آپ کو میرا سلام آداب۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کے این ایس کا، کہ جو وقتاً فوقتاً ہماری ایڈوائزریز جو ہماری پروگرامز ہیں وہ ہمارے فارمرز تک پہنچاتے، اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ جو کام ہم اویئرنیس کیمپ میں جا کے کرتے ہیں جس میں کافی سارا خرچہ ہوتا ہے، وہ آپ کے مادھیم سے تھرو سوشل میڈیا گھر گھر بیٹھے لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کے لیے میں بڑا آبھاری ہوں آپ۔ تو جہاں تک آپ پروگرامز اور پالسیز کا، ہمارے پاس اوپن پالسیز ہیں۔ ہم تھرو میڈیا بھی جڑے رہتے ہیں لوگوں سے، فزیکلی بھی جاتے ہیں، اور اپنا فیلڈ عملہ بھی اویلیبل رہتا ہے، چاہے جاڑے کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہے، چاہے کووڈ ہو، چاہے کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی پریشانی بھی ہو، لیکن تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سروسز دے پائیں اپنے زمیندار کو، اپنے فارمر کو، اور جو ہمارا ڈومین ہے، جو ہمیں کرنا ہے، جو ہمیں سہایتا، جو ہمیں اس کو ایک مدد کرنا ہے، اس کو صلاح دینی ہے ایک زمیندار کو، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں کامیاب ہونے کی اور اس تک پہنچنے کی۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے سال یا 2021 میں بھی اور اس سال بھی تھوڑا جو زیادہ برف باری ہوئی، اور اس کے کارن بہت زیادہ نقصان ہوا باغات کو، چاہے ساؤتھ کشمیر یا نارتھ کشمیر میں۔ اور پھر حالانکہ جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن یا ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان جتنے بھی باغ مالکان کا نقصان ہو ان کو کمپنسیشن کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد حالانکہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی فریم کی جائے گی، لیکن اس کے بعد کوئی اپڈیٹ، کوئی پروگریس اس میں نہیں دکھائی دی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے جانیں کہ برف باری ضروری ہے، لیکن بے وقت جب ہوتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ کبھی مئی میں بھی برف باری ہوتی ہے، کبھی کسی غیر وقت میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو بھی ہم نے اس میں ایڈوائزری یا اس کو ہم نے صلاح دینی ہوتی ہے زمیندار کو، وہ دیتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں۔ اور جہاں تک آپ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم نے بھی سروے کی الانگ ود ریونیو اتھارٹیز، اور جو کنسرن ڈپٹی کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنر کولگام، ڈپٹی کمشنر شوپیان، کیونکہ وہاں ہی زیادہ نقصان ہوا تھا، وہاں پر کمپنسیشن دیا گیا زمینداروں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ منیمم اس میں 2,000 روپیہ دیا گیا پر کنال، اور میکسیمم 18,000 تک بھی گیا پر ہیکٹیئر، تو وہ دیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کہیں گریوینس ہے بھی تو ان کو اپنے ڈپٹی کمشنر جو کنسرن ان کو ملنا چاہے گروور کو، تو وہ تو ایک قسم کا ریلیف ہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ فل کہیں ڈیمیج ہوگا تو وہ ملے گا، وہ تو سرکار کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ ایک قسم کی مدد ہوتا ہے، اور وہ مدد ہم کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی اپنی افسروں کو ہدایت دی ہے کہ ان علاقوں میں، جیسے ہندوارہ میں ہیل سٹارم ہو گیا، میں نے کہا جو ڈپارٹمنٹ کے ڈومین میں ہے، ہم کہیں بورویل دے سکتے ہیں، ہم کہیں سپرے موٹر دے سکتے ہیں، ہم کوئی پیکنگ شیڈ، ہم کوئی ویڈر، ہم کوئی دوسرا میکنائزیشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں، یا ہم جو سینائل آرچارڈ ہو اس کے لیے ہم پلانٹیشن میں کوئی سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ وہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ افسروں کو ہدایت دے کے رکھی ہے کہ جو بھی سہایتا ڈپارٹمنٹ کی اسکیموں میں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ باقی جو کمپنسیشن اور ریلیف کی بات ہے وہ تھرو ڈپٹی کمشنرز آتا ہے۔ سر، ایک بہت بڑی جو شکایت آ رہی ہے، ہر سال آ رہی ہے کہ لوگوں سے کہ جو اتنا زیادہ انسپیکشن نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، جو پیسٹیسائڈس یا باقی جو ایچ ایم او یا یہ منرل آئل آ رہا ہے، ہارٹیکلچر منرل آئل، اس پہ شکایت آ رہی ہے کہ ایک تو ریپیکنگ بھی کبھی کی ہو رہی ہے، ڈپلیکیٹ بھی آ رہا ہے، تو اس زیادہ جو یہاں پہ سرویلنس نہیں ہو رہی ہے تاکہ جو بعد میں جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہاں کے یہ جو جتنے بھی گروورس ہے، فروٹ گروورس، ان کی بہت زیادہ شکایتیں ہیں کہ اس میں زیادہ یہ جو سرویلنس نہیں ہے، تاکہ اگر کہیں نکلی دوائی ہے یا ڈپلیکیٹ دوائیاں ریپیکنگ ہو رہی ہے تو اس پہ کیا
स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि इसको कंट्रोल किया ये जाए? अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको या अपने ग्रोवर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहूँगा कि सरकार का जो एक हमाजात प्रोग्राम है हाई डेंसिटी का, उसमें उनको आना चाहिए। जो जो हमारा ज़मींदार करना चाहेगा हाई डेंसिटी, क्योंकि इसमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं, तो उसको हमारे चीफ हार्टिकल्चर अफसर को अप्रोच करना चाहे या आईडीओ को अप्रोच करना चाहे, तो उस हिसाब से जो डेवलपर हमारे हैं, हमारे कंट्रैक्टर हैं, उनको हम वो असाइन करेंगे। अगर कहीं कोई डेवलपर, कोई कंट्रैक्टर एज पर स्कीम नहीं चलेगा, तो हमारी नोटिस में मेहरबानी करके वो ज़मींदार लाए, हम ज़रूर उस डेवलपर के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो करने के लिए हम पाबंद हैं। तो जहाँ तक आपने ज़िक्र किया दवाइयों का, जो हमारे पास मिनरल ऑयल होता है या जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होता है, उसके लिए भी हमने पिछले 1-2 साल से बड़ी एक मुहिम छेड़ रखी है, क्योंकि हमारी सरकार की नोटिस में आया है, जब ऑनरेबल गवर्नर साहब रिव्यू ले रहे थे डिस्ट्रिक्टों में, तो काफ़ी सारी जगह शिकायत आई कि बहुत सारा जो होता है पेस्टिसाइड वगैरह वो सुपीरियस होता है। तो उसमें हम 1-2 साल से बड़े एक्टिव हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हार्टिकल्चर भी इसमें प्रोएक्टिव हो, क्योंकि एंड यूज़र्स हम ही हैं। तो मैंने अपने अफसरों को बता दिया है कि चाहे हमारे पास पावर है नहीं है, लेकिन हमने इस चीज़ को किसी भी सूरत में देखना है और हम किसी भी गलत या सुपीरियस चीज़ को, पेस्टिसाइड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले यहाँ जो हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल होता था वो विदाउट सर्टिफिकेशन, जो इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया का, ऐसे ही बिकता था। लेकिन जब सरकार की नोटिस में ये चीज़ें आई, तो हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब हैं, पिछले साल से ही उन्होंने बंद किया कि हम किसी भी को अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी कंपनी को जो विदाउट लाइसेंस इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की जो होगी, उसके बगैर हम किसी को भी मिनरल, ये हार्टिकल्चर स्प्रे ऑयल जो होता है, ट्री स्प्रे ऑयल, ये हम भेजने नहीं देंगे। क्योंकि पिछले साल ये नाकाम हो गए ये सर्टिफिकेशन लाने में, तो फिर मैंने गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए। लेकिन इस साल हमने पूरा पहले से ही इनको नोटिसें इशू की, जो भी यहाँ की कंपनीज़ हैं, चाहे HP है, चाहे मैक है, चाहे ड्यूरोटेक है, चाहे एर्बोफाइन है, जो भी हैं, उनको हमने पहले ही नोटिस दे के रखी, भाई आप ये इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइसेंस लाओ, तभी हम आपको अलाउ करेंगे यहाँ ये प्रोडक्ट सेल करने की। इसमें एक कंपनी अभी तक लाई है HP, तो हमने बाकी कंपनीज़ को भी गुजारिश की है कि आप भी ये इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ इंडिया की लाइसेंस लाओ, उसके बगैर हम किसी भी सूरत में उनको अलाउ नहीं करेंगे। ये जो हार्टिकल्चर में ये ऑयल होता है, ये जो ट्री स्प्रे ऑयल होता है, ये नहीं अलाउ करेंगे। और हम ये भी ग्रोवर से गुजारिश करते हैं कि बहुत सारे ये 200 या 100 लीटर के पैक में बाहर से लाते हैं, फिर यहाँ रिपैकिंग होती है, तो रिपैकिंग किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है, क्योंकि उसे एडल्ट्रेशन होगी। मेरी भी जो इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे भी यही इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से कि वो देखें इस चीज़ को कि कहीं रिपैकिंग मत होती है। जो ये बड़े पैक वहाँ से लाते हैं, तो फिर उसमें क्या चांसेस होते हैं, एडल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। बेटर है कि कंपनी से ही वो छोटे छोटे पैक आएँ और ग्रोवर्स तक पहुँचे, वो प्रॉपरली सील होते हैं, प्रॉपरली उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, वो हमारे लिए बेटर। ये वो हमारा सेंसिटिव है, हमारा बैक बोन है हार्टिकल्चर, इसको सीरियस हमने लेना पड़ेगा। हमने कभी भी ऐसे वो उधार नहीं लेना चाहिए। KCC लोन मिल रहा है, KCC लोन लेके हमने नकद कोई प्रोडक्ट लाना है, चाहे खाद लानी है, चाहे दवाई लानी है, चाहे और कोई ऑपरेशन करना है, हम कर सकते हैं। इस वक्त सरकार कहती है कि हम 100% सैचुरेशन करेंगे KCC लोन में। अगर कहीं आपको ब्रांच मैनेजर तंग करता है, प्रॉपर्ली गाइड नहीं मिलता है, या मेरे डिपार्टमेंट में आपको पासबुक नहीं मिलता है, हमें हमारी नोटिस में लाओ, हम उसको एड्रेस कर लेंगे। बहुत बड़ा खदशा इस साल ज़ाहिर किया जा रहा है कि बर्फ़बारी उतनी नहीं हुई है, ताकि बर्फ़बारी ज़्यादा होने का लाजमी है, क्योंकि हार्टिकल्चर जो है ये डिपेंडेंट है बर्फ़बारी से। तो ये खदशा ज़ाहिर किया रहा है अगर ये बर्फ़बारी और नहीं हुई तो इससे जो फ्यूचर में कश्मीर में हार्टिकल्चर उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप किस तरह देखते हैं कि बर्फ़बारी हुई, क्या कम हुई? अगर कम हुई तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे इसको ओवरकम करने की? मुझे नहीं लगता है बर्फ़बारी कम हुई। अभी बर्फ़बारी आज तक जो हुई, जो पहले सालों में होती है, उस जैसी ही हुई। तो अभी भी टाइम है, अभी भी पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती रहती है। जब यहाँ बारिशें होती है प्लेन्स में, तो ऊपर बर्फ़बारी होती है। तो जो ज़ख़ीरे होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वो पहाड़ों में ही होते हैं। तो हमारे जो हम कहते हैं ज़राअत के लिए फिर बारिशें ज़रूरी है, जो वक्तन फ़वक्तन बारिशें होती रहती हैं। जैसे पिछले साल बारिशें हुई, तो इस साल भी हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि इस साल भी बारिशें होती रही, ताकि हमारे जो रेनफेड एरियाज़ हैं, जो बारिशों पर दारमदार होता है, उनको भी रिलीफ पहुँचे और
वहाँ भी अच्छी प्रोडक्शन बने, हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आखिरी सवाल एक बहुत मेजर कंसर्न है, हालांकि जो अगर बात करें हर इंसान या जितने सियासतदान पॉलिटिशियन ने भी कहीं स्टेटमेंट दी है कि यहाँ का जो ईरान से जो आ रहा है वो इलीगली आ रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री उस पर पड़ रहा है, या सेल नहीं हो रही, या जो उसका जो रेट है वो डाउन हो गया है। तो उन्होंने हालांकि सेंटर से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पर बैन पाबंदी लगाई जाए। तो आप किस तरह देखते हैं कि जो ईरान से आ रहा था क्या सच में आ रहा था, क्या यहाँ की कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री उसको इम्पैक्ट कर रहा था? मैंने पहले भी बता दिया है, अब भी यही है मेरा मानना है इसमें कि हमने अपने प्रोडक्ट और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये चैलेंजेस हमने आने, हम जब अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट्स को हम नहीं बंद कर सकते हैं। हमने अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है। ऐसी प्रॉब्लम वैसे नहीं है आपका, अगर आप देखेंगे, आप खुद भी सर्वे कीजिए, आपके ए ग्रेड में कहीं रेट डाउन नहीं है। आपका जो कोल्ड स्टोर का माल निकलता है उसमें कोई रेट की कमी नहीं है। हाँ, विदाउट कोल्ड स्टोर जो आप माल भेजेंगे, क्योंकि उसकी वो शेल्फ लाइफ कमज़ोर हुई होती है, उसका रेट कम आएगा ही। आपके बी और सी ग्रेड में अच्छा रेट नहीं आएगा, आपका ए ग्रेड में और जो कोल्ड स्टोर माल होगा उसी में रेट अब आएगा। तो आपको कंपटीशन में आपको देखना होगा कि अपनी प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी, सब चीज़ों को आपको जहन में रखना है। इसके अलावा हमने सरकार से टेकअप किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी दिल्ली से ये टेकअप किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ईरान का यहाँ डंप होता है, उसको जो एंटी डंपिंग चार्जेस वगैरह हैं वो लगने चाहिए, वो ज़रूर है। अगर कोई हमारे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ से, वो ज़रूर हम अपनी सरकार से करेंगे, अपने मुल्क के जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं ज़रूर हम करेंगे और वो सुनेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ में क्वालिटी को साथ में हमने कंपटीशन में जाना है। हमारे पास ईरान का क्या, हमारे पास तमाम वर्ल्ड के फ्रूट्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, दूसरी चीज़ें आएंगी। हमको कम्पीट करना है और अपने स्टैंडर्ड को, अपने मेयार को, अपने पैकेजिंग को, हर एक चीज़ को हमने इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर अगर आपकी कोई मैसेज है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो बागबान हजरात हैं, बाकी लोग जो हार्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपकी उनके लिए कोई ख़ास पैगाम है जो देना चाहिए, क्योंकि हार्टिकल्चर को सीज़न अब वो आने वाला है। तो मेरे पास इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ऑर्चार्ड सैनिटेशन, जो बागों की सफाई है, उसमें ज़रूर ख्याल रखना है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्चार्ड सैनिटेशन कि इसमें काफ़ी सारे पेस्ट छुपे हुए होते हैं। खासकर मैं ज़ैनापोरा की बात करूँगा, वहाँ भी एक लीफ माइनर का अटैक है। उन ज़मींदारों से भी मेरी हैंड फोल्डेड अपील है कि अपनी बागों की सफाई कीजिए और जो हम कहेंगे सुप्रे, खासकर ज़ैनापोरा, सफनगरी, रशनगरी, उस साइड में जो हम सुप्रे कहेंगे वही सुप्रे करें, हमारे साथ इन टच रहें। अगर हमने लीफ माइनर को हमने रेड जोन भी करार दिया है, हमने वहाँ येलो जोन्स भी बनाए हैं, जिस तरह हम कोविड में बनाते हैं, क्योंकि वहाँ लीफ माइनर का अटैक है, उसको हमने कंटेन करना है और उसको एरेडिकेट करना है। इसी तरह रफ़ी आबाद में भी हमारा फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमने अगर कंटेन करना है, एरेडिकेट करना है, तो डिपार्टमेंट की सलाह से ही जो दवापाशी की बताई जाए वही करनी है। डिपार्टमेंट का मतलब पूरा उसके साथ सहयोग चाहिए। हमने बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया। हमने यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी ये टेकअप किया है। हमने 1-2 मीटिंग भी इस पर की है और इसमें बड़ा मुतमईन हूँ मैं। यूनिवर्सिटी का अच्छा उसमें फीडबैक मिल रहा है और कंटिन्यूसली हम मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों को। मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरों को बता दिया है कि हर एक चीज़ में जो बीमारियां हैं ये पहले भी आती रही हैं, अब भी हैं और आने वाले टाइम में भी आती रहेंगी। जिससे पहले कालरा हुआ करता था, अभी कोविड आया। इसी तरह ये जो हमारे खेतों में, हमारे बागों में भी पहले भी सिकेप था, संजो सिकेल था, दूसरा कोई होता था कोई पेस्ट, वो था भी, है भी और आता भी रहेगा। उन चैलेंजेस को उसी के लिए डिपार्टमेंट बैठे हैं, उसी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स हैं, उसी लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए चेक कर रही। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस साल अलग से एक सुपर शेड्यूल देने की, जो हमारा हाई डेंसिटी है उसके लिए भी हम थोड़ा फर्टिगेशन का अलग से देंगे। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जब दवाई लेंगे डीलर से, हम जब कोई चीज़ लेंगे, हम अपने एक्सपर्ट के मशवरे से लाएं, डीलर के कहने पर चीज़ नहीं लाएं। और हम अपने बॉडी प्रोटेक्शन का भी, अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। जब हम दवा पाशी करते हैं, कभी हम वो प्रोटेक्शन गियर यूज़ नहीं करते हैं, कभी हम मास्क नहीं लगाते हैं, कभी हम ऐनक नहीं लगाते हैं, कभी हम ग्लव्स नहीं लगाते हैं। जहर होता है, कार्सोजेनिक होता है, हमारी सेहत को बर्बाद कर सकता है। और कंसंट्रेशन वही करनी चाहिए वो डिपार्टमेंट बोलता है। हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इसमें मानना है कि
फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक चीज़ों पर काम करने की। तो ऑर्गेनिक के लिए हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन और ऑर्गेनिक कोशिश करेंगे, कोई पेस्टिसाइड कोई इंसेक्टिसाइड भी आने वाले टाइम में उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन हमने ये मानना है कि हम कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें और अपने सेहत का अपने माहौल का ख्याल भी रखें। बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस से बात करते। तो ये थे डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर। इन्होंने कई बातों का जिक्र किया और ये भी कहा कि अगर कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्री को आगे जाना है तो इसको हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, कम्पीट करना है, तो इसके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। मैं हूँ सजाद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए।